Hello, everybody. Hi. How are you all? Fine? Okay, then. So, now this video, I'm going to tell you how to read your NCERT textbook. Means the best way to read NCERT. So, now let's begin. So, now, dear children, you know very well every child is special. So, in order to attain this speciality, when you are in your higher classes, also it is very much useful in your classes 6 to 8 also, but when you come in higher classes, NCERT is the best and important book to master your concepts for any of the exams, whether it is NEET, whether it is JEE Mains, NDA. NCERT is a building material for clearing your concepts. So without wasting much of your time, let us quickly discuss on the 10 points or the 10 best ways to read NCERT. Now first of all, basically I would like to tell you that NCERT is the best and the top class book for clearing your concepts in chemistry as well as in biology. So let us start with the first topic. Set your target. Set your target means set mini targets. Mini targets means you should set a target that today itself or in a particular day you are going to complete one topic, or like say one page, or at least 4 to 5 pages, or maybe half chapter or 1/4 of the chapter. So first of all, you should be target oriented. Okay, set a target. Second thing, download book, get it print or purchase a new one. Either you download a book given in the link, then after downloading the book, get it print, उसका एक print ले लीजिए. Print कैसा होगा? सीधे black and white पेज पे white पेज पे आपका print आएगा, या फिर परचेज अ न्यू वन. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, अपने सीनियर से, बड़े भाई बहन से, रिलेटिव से, नेबर से बुक्स बोरो कर लेते हैं. बट जब आप बुक्स बोरो करते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, अगर उस बुक को भी आप बोरो करते हैं तो उसकी भी आप ज़ेरॉक्स कॉपी करवा लीजिए. ज़ेरॉक्स इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी पुरानी यूज्ड बुक यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी मार्क्ड होगी, ऑलरेडी उसमें पेजेस मार्क्ड होंगे, हाईलाइटेड होंगे, टिक मार्क्स होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा अपना ओन स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम जाएगी. तो इट्स बेटर दैट यू गेट इट डाउनलोड, गेट इट प्रिंट. एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट अपने पास रखिए. ब्लैक एंड वाइट इसलिए कि अगर आप पुरानी बुक भी कोई लेते हैं, आप उसकी ज़ेरॉक्स करवाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट आएगी. ब्लैक एंड वाइट में आपको ईजिली अपना खुद का मार्क लगाने में ईजी हो जाएगा. ओके. थर्ड पॉइंट, रीड बूझो एंड पहेली. बूझो मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझो, और पहेली मीन्स पजल. सो व्हाट हैपेंस, एनसीईआरटी क्या करता है, इट्स बिल्डिंग स्टोरी. मीन्स इन ऑर्डर टू मेक कंसेप्ट बेटर you have to follow this bujo and paheli. It will help to understand concepts and fetch some marks in exams. Okay, क्योंकि समझ के उस पजल को सॉल्व करने में मीन्स यू आर क्रिएटिंग स्टोरीज. ओके. अब आपने देन गो थ्रू द डायग्राम्स एंड लेबल्स. देखिए कोई भी डायग्राम है, डायग्राम और लेबल्स मीन्स जैसे आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि आपका डायग्राम जो मेंशन है, बीच एक्सप्लेनेशन में कहीं भी लिखा रहता है एज मेंशन्ड इन अबव डायग्राम. तो अबव डायग्राम में क्या है कि आपने जैसे ही डायग्राम्स देखा, जैसे आपने डायग्राम देखा, इमीडिएटली यू ड्रॉ दैट डायग्राम इन योर कॉपी, so that at the same time when you are going through the explanation you are done with your diagram also. आप डायग्राम का अंडरलाइन या हेडिंग भी चेक करिए कि वो डायग्राम किस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, वो डायग्राम क्या बता रहा है. ओके. क्योंकि स्पेशली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से. मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं. ओके. नाउ रीड ऑल द स्निपेट्स एंड बॉक्सेस. Snippets and boxes are those sets where you find did you know वाला जो सेक्शन होता है
उसे आपको मेक श्योर दैट यू रीड ऑल डिड यू नोज, because NCERT say they do ask question from the did you knows. Okay, now these were the few tricks and techniques till point number 5th. Now from point number 6 you should develop this strategy while setting target or while reading the content. Now see, point number 6, read content carefully line by line. Keep a pencil in your hand or a highlighter in your hand. Now read the content carefully line by line. As you read any book, as you read any magazine, as you read any newspaper, simply do a simple reading. But don't forget, you have to set the target. 7th point, highlight or underline with light color highlighter. I told you earlier while going through the 6th topic that read the content carefully line by line. जब आप लाइन बाय लाइन कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन में अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट दिखता है, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ में आपको 3 पॉइंट्स दिखे, उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लीजिए और उसमें मेंशन कर लीजिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. हाईलाइटर हमेशा ही लाइट कलर का होना चाहिए, जैसे येलो हो गया, पिंक हो गया, ठीक है. लाइट कलर के हाईलाइटर्स आप यूज़ कीजिए. आफ्टर अंडरलाइनिंग दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स और आफ्टर हाईलाइटिंग दोज पॉइंट्स, your reading is done. Do NCERT exercise questions. आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको क्लियर. आप अगेन एंड अगेन रीड करेंगे. जैसे ही आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको दिखेगा कि आंसर्स तो टेक्स्ट बुक में ही छुपा हुआ है कहीं. ओके. 9th पॉइंट, राइट योर ओन की नोट्स और समरी ऑफ ईच चैप्टर. आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने उसके 3 पॉइंट्स बनाए, जैसे मैंने आपको 7th पॉइंट में समझाया कि आपने पॉइंट बना लिए. ठीक है. पॉइंट बनाने के बाद आप उसे पॉइंट में लिख लीजिए, एक समरी बनाइए. आप देखिए हर चैप्टर की समरी एनसीईआरटी ने एक छोटे से सेक्शन में कंप्लीट कर ली है, 10-15 लाइन्स में. एनसीईआरटी ने 10-15 लाइन में कंप्लीट किए. आप अपने ओन की नोट्स बनाइए और अपनी खुद की समरी बनाकर आप उसे कम से कम हर चैप्टर को 3 से 4 पेज या 2 से 3 पेज में कंप्लीट कर लीजिए, की पॉइंट्स हो या समरी हो. क्लियर. लास्ट, रीड. आपने 6th नंबर पे केयरफुली रीड किया. 2nd टाइम पे आप रीड करेंगे. रीड आप कैसे करेंगे? जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप उन्हें फिर से रीड करेंगे. रिवाइज आप कहाँ से करेंगे? अब की बार आप बुक से रिवाइज नहीं करेंगे, आपने जो की नोट्स या समरी बनाया है उसे रिवाइज करेंगे. लर्न ऑल द कंसेप्ट्स, क्वेश्चन आंसर्स, बूझो पहेली. यू शुड नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट नाइसली एंड लर्न देम. रिमेंबर चिल्ड्रन, morning and night you should reread NCERT textbook. If possible before the exam also once you should read, means at least आपकी 3 times reading NCERT textbook की हो जानी चाहिए. NCERT should be in your blood, breath and soul. उसे घोल कर पी जाओ अगर आपको अपने ये कुछ सेलेक्टेड एग्ज़ाम, नीट, जेई, एडवांस ये सब क्रैक करने हैं. बाकी बोर्ड तो सीबीएसई बोर्ड तो प्रिस्क्राइब ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करता है, तो एनसीईआरटी ही आपकी बैकबोन है केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज व्हेन यू आर रीडिंग लाइन बाय लाइन, do not ignore introductory paras. Remember children, for chemistry theory as well as for biology theory NCERT is important. MCQs के लिए आप कुछ बुक्स, जैसे केमिस्ट्री में तो मैं कहूँगी आप रेफरेंस बुक्स ओपी टंडन वगैरह ले सकते हैं. फिज़िक्स के लिए आपको NCERT में थोड़ा सा कम कंसेप्चुअल मिलेगा, कम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो फिज़िक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट फॉर केमिस्ट्री theory, NCERT is the whole soul study material which can help you to fetch marks. That's all in this video. I hope you must have liked and you will understand and follow these best ways or these ways to read NCERT textbook. So please dear children, read, learn, write, revise, stay happy, stay positive and don't forget to like and subscribe
this channel. Thank you and have a nice day.